चाह रहा होगा कि सर आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है और तुम लोग को याद नहीं दिलाया मुझे. Okay. So we have started with electricity. Whenever you rub two, non-conducting bodies, that is two insulators, one of the body will lose electrons and the other body will gain electron. The body which loses electron becomes positively charged क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज और जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ. सो इसीलिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड इज नेगेटिव चार्ज. सो वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. Two like charges repel each other while the two unlike charges attract each other. So we know that positive will repel, negative will repel, but a positive, when brought near a negative charge, they will attract each other. Why? Because unlike charges attract each other and like charges repel each other. So this is the basic characteristic of charge. Like charges repel and unlike charges attract. The charge on the body is denoted by the symbol small q or plus capital Q. Unit of charge, so SI unit of charge is coulomb. Okay, इसको capital C से represent करते हैं. The smaller unit of charge are millicoulomb and microcoulomb. तो छोटे units हो गया, एक millicoulomb हो गया और दूसरा microcoulomb हो गया और उससे भी छोटा nanocoulomb हो गया. So 1 millicoulomb is 10 to the power minus 3 coulomb. 1 microcoulomb is 10 to the power minus 6 coulomb. 1 nanocoulomb is 10 to the power minus 9 coulomb. The quantity of charge on a body is determined by the number of electrons in deficit. That is, if the body is positively charged, or the number of electrons in excess if the body is negatively charged. मतलब यहाँ पे चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है ना, तो जो डिस्क्रीट नेचर है चार्ज का, कंटिन्यूअस नेचर नहीं है. मतलब चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इन नेचर. तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो दैट इज द चार्ज विच इज पॉसिबल टू बी that is the charge which is possible to be transferred from one object to the other object. उससे छोटा चार्ज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो इसीलिए ये कह रहा है कि जो चार्ज है किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डेफिसिट हो रहा है जिस बॉडी से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में है दूसरे बॉडी में, उस पे, इन्हीं दो चीज पे आपका चार्ज पता चलेगा टोटल चार्ज कितना है. So thus charge on a body is always calculated by Q is equal to plus minus Ne. इस प्रोसेस को, ये जो फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज charge always exists as integral multiple of number of electrons. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई करते हैं. n कोई भी इंटीजर ही होगा, राइट, और E क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हो गया. सो वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है. कभी भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर के फॉर्म में ही होगा. ठीक है. So plus sign and in excess for negative sign. So deficit है तो plus sign, number of electron deficit है तो plus sign, number of electron excess में है तो negative sign. While E is the charge on one electron. E जो है charge on one electron. So charge on an electron is minus of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. Or 1 coulomb charge means a deficit of 6.25 into 10 to the power 18 electron. Basically हम लोग को कैलकुलेट करना होता है कि 1 coulomb ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो आप ये यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई
1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is present in one electron. So 1 coulomb of charge will be present in 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. So this is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. तो एक कुलम्ब ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना. 1 coulomb of charge constitutes these many 6.25 into 10 to the power 18 electrons. When brought together, उन सब के चार्ज को एड अप करेंगे तब जाके हमें 1 coulomb of charge मिलेगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now, in a non-conducting, non-conductor or insulator, the charge resides at a point where there is an excess or deficit of electron. That is, the charge is static, it does not flow. तो अगर एक insulator है तो उस insulator में क्या होगा? The charge resides at a point where there is an excess or deficit of electron. Charge किसी भी body में कब होगा? Because of excess of electrons or deficit of electrons. And the charge is static, it does not flow. तो आपने जो भी चार्ज दिया है किसी भी इंसुलेटर पे, उस पे स्टैटिक रहेगा, वहीं पे रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा. इसीलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जब भी इंसुलेटर पे जो चार्ज है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. मतलब व्हेन द चार्ज इज नॉट मूविंग वी कॉल इट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हेन द चार्ज इज मूविंग वी कॉल इट करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट का मतलब डायनेमिक, मूव करना. On the other hand, a conductor such as a metal has a large number of free electrons in it, so charges in a conductor can move or flow. तो एक कंडक्टर में जो चार्ज है it can move or flow, it is not stationary, so it is called a current electricity. अगर हम लोग एक कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. Now current is defined as the rate of flow of charge. तो अभी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े और ये पढ़ा हमने कि भाई चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स है, और चार्ज मिनिमम जो चार्ज क्या एग्जिस्ट कर सकता है. मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है किसी बॉडी पे, दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. द वैल्यू ऑफ दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And we also studied that 1 coulomb of charge consists of 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. अब हम लोग करंट पे आते हैं. So current is defined as rate of flow of charge. Rate of flow of charge मतलब टोटल चार्ज अगर Q फ्लो कर रहा है किसी एरिया से, मान लो ये हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कंडक्टर को काट दें तो इधर से जो एरिया हमें दिखेगा वो A दिख रहा है. इसमें से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जितना चार्ज T टाइम में फ्लो करता है, current will be given as total charge flowing through a cross section divided by time t. So rate of flow of charge, current is defined as rate of flow of charge. So the current flowing in a conductor is the amount of charge flowing per second across any cross section of it. It is denoted by the letter capital I. So the current I through the conductor is given as I is equal to Q upon T. So current in a circuit is measured by an ammeter by connecting it in series in that circuit, taking care that the positive marked terminal end of ammeter is towards the positive terminal of the source of the current. ना जो करंट मेजर कौन करता है? एमीटर मेजर करता है. और एमीटर कुछ इस तरह का एक डिवाइस होता है, ठीक है. और यहाँ पे देखोगे दो उसमें नॉब जैसे होते हैं जिसमें हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं. और यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर होता है और इसमें ग्रेडेशंस होते हैं जो करंट मेजर करके बताते हैं. ये जो पॉइंट है जिसमें वायर को लाके हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक पे पॉजिटिव लिखा होगा, दूसरे पे नेगेटिव लिखा होगा. पॉजिटिव वाले को हम लोग लाके उस वायर के मतलब उस सर्किट में ऐसे कनेक्ट करेंगे जिससे कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, नेगेटिव यहाँ. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ दिस, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ दिस. So this is how you connect the
connect an ammeter. So it is connected in series in that circuit. मान लो हम लोग को ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक ईएमएफ का सोर्स है, एक स्विच है, और अगर हम लोग को यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है, ये ईएमएफ हो गया और ये स्विच हो गया। स्विच ऑन किया, अब अगर हमें यहाँ पे करंट मेजर करना है तो हम लोग एमीटर यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ सीरीज में। तो वही चीज लिख रहा है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन दैट सर्किट, टेकन केयर दैट इस एमीटर का पॉजिटिव इस बैटरी के पॉजिटिव के तरफ ही लगाएं और नेगेटिव को इस बैटरी के नेगेटिव के तरफ लगाएं। क्लियर है बच्चों? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। We define 1 ampere as the current which flows in the circuit in the conductor when 1 coulomb of charge passes in 1 second. So 1 ampere is 1 coulomb by 1 second. Okay. So to express a weak current, the smaller units current are milliampere and microampere, which are related to ampere as follows. So 1 milliampere is 1 milliampere is 10 to the power minus 3 ampere. 1 microampere is 10 to the power minus 6 ampere. Clear? Yes, sir. So this is mentioned here as well. 1 milliampere is 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere is 10 to the power minus 6 ampere. Now in metals, the moving charges are the free electrons which constitutes the current. भाई करंट होता क्यों है? मूविंग चार्ज की वजह से। जो चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से करंट फ्लो करता है किसी ऑब्जेक्ट में। तो अपने आप तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लो ये हमारा कंडक्टर और एक बैटरी को कनेक्ट किया हमने। जब बैटरी को कनेक्ट किया, स्विच मान लो पहले जब ऑफ है, राइट, तो उस समय सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तो सब रैंडमली मूव कर रहे थे पहले, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे जो डायरेक्शन है, तो स्विच को ऑन करते ही ऑल द डायरेक्शन, सारे जो है एक डायरेक्शन में अब मूव करने लगे। So all of this will start moving in one direction. सारे एक डायरेक्शन में, इधर इधर, ये सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। ठीक, क्यों इधर मूव करेगा? इज बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है इस एंड में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, हमने देखा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होके चला जाएगा, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है। So in metals, the moving charges are the free electrons which constitute the current, while in electrolytes and ionized gas, both the positively charged ions and the negatively charged ions are the moving charges which constitute the current. तो अगर हम मेटल कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, मेटल कंडक्टर्स के बारे में, तो मेटल कंडक्टर्स में द चार्ज कैरियर्स आर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे या आयोनाइज्ड गैस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें फ्री आयंस होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में होता है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम नोटिस किए होगे, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे, तो 10th क्लास में ही है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यस सर। ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4,
ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, 2Na प्लस और प्लस ऑफ SO4 2 माइनस। अब SO4 2 माइनस और Na प्लस ये सब क्या है, आयंस है। आयंस मूव करता है एक तरफ से दूसरे तरफ। मान लो हमारे पास एक कैथोड लगा हुआ और एक एनोड लगा हुआ है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है कैथोड, तो कैटायन जो होगा, कैटायन क्या होता है, कैटायन में CaTiON, ये T देखो पॉजिटिव जैसा दिख रहा है ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है। और या फिर ऐसे याद कर सकते हो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज उधर अट्रैक्ट होगा, इसीलिए कैटायन पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरह एनायन जो होगा, एनायन में N होता है, ANiON, ठीक है। तो एनायन का ये जो N है ये नेगेटिव चार्ज को दर्शाता है। तो एनायन नेगेटिवली चार्ज हो गया और कैटायन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा, तो कैटायन कैथोड पे ही जाएगा। CaT कैटायन और CaT कैथोड, दोनों में CaT है। एनायन और एनोड, ANiON एनायन और एनोड ANOD। अब नेगेटिव चार्ज है एनायन में, तो वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है यहाँ पे मूवमेंट किसका होता है, आयन का मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज फ्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आयंस विच आर मूविंग। So both the positive charged ions and negatively charged ions are the moving charges which constitute a current inside an electrolyte. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now, if n electrons pass through the cross section of a conductor in time t, the total charge passed through the conductor is given as Q is equal to N. एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको E से हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू Ne। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही बता रहा है। करंट इज अ, अच्छा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब करंट I कह रहे हैं, I करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q अपॉन टी हो गया, Q की जगह Ne पुट कर दिया तो Ne अपॉन टी हो गया। नाउ करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो करंट है स्केलर क्वांटिटी है। अब बोलोगे सर करंट स्केलर क्वांटिटी है बट ये जो कंडक्टर में मूव करता है, राइट, ये हम जब पहली बार पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे। और इसका डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन है ना, एक राइट की तरफ हो गया या फिर लेफ्ट की तरफ हो गया, हम डायरेक्शन बता सकते हैं करंट का। तो करंट का तो डायरेक्शन होता है, तो फिर इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? सर वो कोई इक्वेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज होती है, उसको वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। इक्वेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज नहीं, वेक्टर एल्जेब्रा के हिसाब से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो नॉर्मल एल्जेब्रा से ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। तो बिकॉज वेक्टर एल्जेब्रा से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये वेक्टर नहीं है। इट फॉलोज नॉर्मल एल्जेब्रा। मान लो दो करंट को ऐड करना होगा, दोनों को प्लस कर देते हैं। वेक्टर्स में दोनों क्वांटिटी को ऐसे प्लस नहीं कर सकते, उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग प्लस करते हैं। वेक्टर ये कहता है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनको प्लस करके जो आपको क्वांटिटी मिलेगा दैट विल बी अ वेक्टर विच इज सम ऑफ दीज टू। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका समेशन ये होगा जो रिजल्टेंट होगा इनका। क्लियर है? और अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगा तो ऐड कर देंगे सीधे और हम लोग को टोटल वैल्यू आ जाएगा उससे। तो करंट को हम सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिना उसके डायरेक्शन को जाने, मतलब डायरेक्शन इन द सेंस कि ये वाले डायरेक्शन को जाने। इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में अगर नंबर ऑफ कैटायंस N1 हो गया और नंबर ऑफ एनाइंस N2 हो गया, ठीक है, तो Q1 चार्ज जो होगा नंबर ऑफ कैटायंस इनटू चार्ज ऑन ईच कैटायन। ईच ऑफ चार्ज Q1 मतलब एक कैटायन पे चार्ज Q1 है, N1 कैटायन पे N1 इंटू Q1 हो जाएगा। एक एनाइन पे चार्ज Q2 है, N2 कैटाइंस पे N2 इंटू I2 हो जाएगा। Now the current in direction of motion of cation will be, तो करंट का अगर हम लोग को डायरेक्शन बताना है
So number of cation into charge on each cation plus number of anion into charge on each anion divided by T कर देंगे हम लोगों को करंट पता चल जाएगा. I is equal to N1 into Q1 plus N2 into Q2 divided by 2. क्लियर है बच्चों? यस सर. बेसिकली टोटल चार्ज हम लोग निकाल लिए N1 into Q1 plus N2 Q2 से, और उसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को करंट पता चला. Now potential and potential difference. So the potential at a point is defined as amount of work done per unit charge in bringing a positive charge from infinity to that point. It is denoted by the symbol capital V. It is a scalar quantity. So potential क्या होता है कि amount of work done, मान लो infinity पे कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज है, infinity से किसी पॉइंट A तक लाने में इसको जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब अगर मान लो Q कूलम को ला रहे हो, वर्क डन W करना पड़ रहा है इसको लाने में, तो जो पोटेंशियल एट A हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. So potential at a point is defined as amount of work done per unit charge in bringing a positive test charge from infinity to that point. Positive test charge का मतलब positive और unit charge in bringing a unit charge in bringing positive test charge. Test charge का मतलब कि जिसको आप लाके और बाकी work done को measure कर रहे हो, ठीक है, experiment कर रहे हो. It is denoted by the symbol V. It is a scalar quantity again. तो V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को. The potential is positive at the point in the vicinity of a positive charge, since work has to be done on positive test charge against the repulsive force due to positive charge in bringing it from infinity. While it is negative at a point in the vicinity of a negative charge, since the attractive force on test charge due to negative charge does work by itself. तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो. वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज के पास आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो. If W joule of work is done in bringing the test charge Q coulomb from infinity to the point P, then electric potential V at the point P is given as V is equal to W upon Q. So potential V is equal to W upon Q. The work needed to move a charge Q from infinity to a point P, where electric potential is V, will be work done W is equal to Q into V. Now unit of potential V. So V का हम कह रहे हैं हम W by Q है, तो unit of work by unit of charge, unit of work joules है, joules per coulomb हो गया basically potential. So joules per coulomb है SI unit which has been given a name volt, है ना, in the honor of scientist Alessandro Volta. अब potential difference between 2 points is given is equal to the work done per unit charge. अगर दो पॉइंट के बीच में मान लो हमारे पास एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट बी ए है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, राइट. So work done in bringing a unit positive charge from B to A. So potential difference will be final potential minus initial potential. So this is VAB को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है, तो ये जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं एक Q चार्ज को B से A लाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज वर्क डन बाय चार्ज Q.
The potential difference between 2 points in an electric circuit is measured by voltmeter. Okay. So potential difference is measured by voltmeter, which is connected across those points in parallel with the circuit, taking care that positive terminal of a voltmeter is connected to the higher potential. So अगर हम लोग को किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग को वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा. तो अगर हमें इस कंडक्टर, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो दैट विल बी, we have to connect the voltmeter parallel to the resistor. Is it clear? अब रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे. द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. नाउ रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो जो करंट फ्लो कर रहा है, राइट, उस करंट फ्लो के अगेंस्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं. मतलब फ्लो ऑफ करंट को, जो प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच दैट फ्लो ऑफ करंट इज बीइंग स्टॉप्ड, दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. नाउ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, so when a metal is formed, its atom lose electron from its outer orbit. A metal has a large number of electrons and an equal number of fixed positive ions. So the positive ions do not move while the electrons move almost freely inside the metal. So these electrons are called free electrons. तो ये हम लोग ने बात किया था अभी कि electrons कैसे move करता है randomly. They move at random, colliding amongst themselves and with the positive ions in any direction, as shown in the figure. The net flow of electrons in any direction is zero. So no current flows. तो बेसिकली रैंडम डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके वजह से जो नेट फ्लो है, जितना राइट साइड को जाएगा उतना ही लेफ्ट साइड को इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन एनी डायरेक्शन इज सेम, then in that case we say that there is no current which is flowing. But when the ends of the metal wire are connected to a cell or a source of current, that is when the potential difference is applied across the ends of metal wire, the electrons inside it experience a force in direction from the end at negative potential towards the end at positive potential, due to which they begin to move as shown in the figure. So due to the force, their speed increases, but during movement they collide with the fixed positive ions and lose some of their kinetic energy, due to which their speed decreases. So this lost energy heats the wire. After the collision, they are again accelerated towards the positive potential due to the existing potential difference. So their speed again increases, and then again in collision with the positive ion, their speed decreases. This process continues. तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेगा, राइट, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू किया, आया तो इस पॉजिटिव आयन से टकराया, टकराने से उसका स्पीड फिर से 0 हो जाएगा, फिर एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करके फिर आगे मूव करेगा, फिर ये टकराएगा, फिर उसका स्पीड 0 होगा, फिर एक्सेलरेट करेगा. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है जब तक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक ना पहुंच जाए. तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता विदाउट एनी कोलिजन और जल्दी पहुंच जाता. अब बिकॉज वो एनर्जी का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट कोलिजन्स,
सो उसके वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है जो कोलिजन्स के वजह से, उस रिगार्डिंग बेसिकली इट टेक्स टाइम for this positive ion to reach to this place, right? And this collision results in the resistance of the conductor. तो जितना ज्यादा collision होगा उतना ज्यादा resistance होगा. So this lost energy heats the wire. After the collision, they are again accelerated towards the positive potential due to the existing potential difference. So their speed again increases, and then again in collision with the positive ions, their speed decreases, and this process continues. Okay? Now, as a result, the electrons do not move in bulk with a continuously increasing speed, but there is a drift of electrons towards the positive terminal. Thus, a metal wire offers some resistance to the flow of electrons through it. अब ओम्स लॉ की बात करते हैं. Right. According to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided that the physical conditions and the temperature of the conductor remains constant. So, जो Ohm's law है, right? So, Ohm's law ये क्या बताता है? Current flowing in a conductor, I is directly proportional to potential difference applied across its end. मतलब I is directly proportional to V. है ना? Now, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि V is directly proportional to I, right? So if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current flowing in it also gets doubled because I directly proportional to V है. V को अगर डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा. ठीक है. Now, if a current I flows in a conductor, then the potential difference across its end is V, then according to Ohm's law, I is proportional to V. So I is proportional to V, मतलब V by I is equal to a constant. अब बेसिकली जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे, V is proportional to I और V is equal to I into R, where R is the constant of proportion. तो which is known as resistance. So R का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V by I हो जाएगा. So R is equal to V by I. So unit of R is unit of V by unit of I. Unit of V वोल्ट है और unit of I करंट है, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर. तो वोल्ट बाय एम्पियर ये बेसिकली वोल्ट बाय एम्पियर हम लोग ओम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. सो which is named after the scientist Ohm. It is denoted by the symbol omega. Omega से इसका symbol represent करते हैं. किलो ओम मेगा ओम का जो रिलेशन है, 1 किलो ओम is 10 to the power 3 ओम और 1 मेगा ओम is 10 to the power 6 ओम. अगली क्लास में हम लोग कंडक्टेंस और ये सब सारा चीज करेंगे. सो वील फिनिश दिस पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो जितने दूर तक पढ़ाया है उतना नोट्स में शेयर कर लूंगा. तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और अपने कॉपी में भी उसका नोट्स बना लेना. ठीक है. Yes, sir.